गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी 11th का ही चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, वेक्टर्स। ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। तो मैं बार बार आपको हर बार एक ही सजेशन देता हूँ कि पहले पीछे वाले वीडियो देखो, फिर आप इस वीडियो को देखना। अगर आप डायरेक्ट थर्ड वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेटर है कि आप लोग फर्स्ट see the first part and second part of vector, then you will see this third part. Now we will discuss laws of addition of vectors. Laws of addition of vectors. How can you add vector quantities? First rule is triangle law of vector addition. First is triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition. Triangle law कहता है if two vectors both in magnitude as well as direction are represented by sides of triangle taken in same order, then the resultant is represented by third side taken in opposite order. Suppose this is the triangle and this triangle is OP1, P2. If two vectors both in magnitude as well as direction are represented by two sides of a triangle taken in same order, this is suppose A vector, it is represented by OP1. This is B vector represented by P1, P2. These two vectors are in same order. इनका order जो है वो same है. Then the resultant is represented by third side taken in opposite order, and this is called resultant vector. So resultant vector is represented by OP2. Means you will write OP1 vector plus P1 P2 vector, and this is equal to OP2 vector. OP1 vector plus P1 P2 vector is equal to OP2 vector. A plus B is equal to R. A plus B is equal to R vector. So resultant vector is equal to A vector plus B vector. And this is the triangle law of vector addition. For example, we will take one more example. Suppose this is any triangle and name is again OP1, P2. Now these are the vectors. Now you have to apply the triangle law. आपको ट्रायंगल लॉ लगाना है इसमें, और ट्रायंगल लॉ क्या होगा, जहाँ से दो टेल्स हैं वहाँ से स्टार्ट करो. P1O and OP2, these are the vectors are in same order. Vector P1O, we will not write OP1. OP1 vector and P1O vector both are different. So here P1O, this is a vector P1O plus OP2. This is the second vector, and the resultant is represented by tail of first and head of last, and this is equal to P1 P2. This is equal to P1 P2. Now we will take one more example. मतलब ये है कि आप सीख लो हाउ कैन यू अप्लाई द ट्रायंगल लॉ. आपको ट्रायंगल लॉ लगाना आना चाहिए. ट्रायंगल किसी भी शेप में हो सकती है. आई एम राइटिंग द नेम OP1 P2. Now you have to apply triangle law in this triangle.
Now see two vectors which are in same order. OP2, P2, P1. These are the vectors in same order. And resultant will be in opposite order. Then OP2 plus P2, P1. OP2 plus P2, P1. This is equal to OP1. So two vectors are in same order. Resultant will be in opposite order. This is the how you can apply the triangle law in different situations. तो ट्रायंगल लॉ आपको आना चाहिए, हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे. और बेसिक रूल यही है ट्रायंगल लॉ के पीछे. सपोज दिस इज OP1 वेक्टर A, दिस इज P1 P2 वेक्टर B एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर R. तो जो मैंने लास्ट टाइम बताया था बेसिक रूल ऑफ एडिशन, ज्वाइन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ सेकंड. हेड और टेल को ज्वाइन करना है. देन रिजल्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टेल ऑफ फर्स्ट एंड हेड ऑफ लास्ट. पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पॉलीगन लॉ. एक्चुअली पॉलीगन लॉ भी क्या है? इट इज अ रिपीटेटिव यूज ऑफ ट्रायंगल लॉ. पॉलीगन होता है, पॉली बने होता है मैनी साइड्स. सपोज दिस इज एनी पॉलीगन. दिस इज O, P1, P2, P3 and P4. Vector A, vector B, vector C, vector D. If vector A, B, C, D both in magnitude as well as direction are represented by sides of an open polygon. Sides of an open polygon taken in same order. Then their resultant is represented by closing side taken in opposite order. फिर देखो वेक्टर A, B, C, D both in magnitude as well as direction are represented by sides of an open polygon taken in same order. Then the resultant is represented by closing side taken in opposite order. तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? OP1 प्लस P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P4 is equal to OP4. Means A vector plus B vector plus C plus D is equal to R resulted vector. तो यहाँ भी बेसिक रूल वही है, हेड टेल, हेड टेल, हेड ऑफ फर्स्ट टू द टेल ऑफ सेकंड, head of second to the tail of third and so on. Then resultant is obtained by joining tail of first and head of last. And this is called polygon law of vector addition. अब मुझे करना है इसका proof of polygon law. Now we will discuss the proof of polygon law of vector addition. First we will take the triangle OP1P2. This is the triangle OP1P2 and this is the arrow from OP2. In triangle OP1P2 apply the triangle law. अब पहले आपने प्रैक्टिस कर रखी है ट्रायंगल लॉ लगाने की, तो अपने आप ट्राई करो. इन ट्रायंगल OP1P2 बाई ट्रायंगल लॉ लगाओ. ट्रायंगल लॉ OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर, OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू OP2 वेक्टर. टू आर इन सेम ऑर्डर, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इन अपोजिट ऑर्डर. तो हेयर A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू OP2 वेक्टर. तो OP2 वेक्टर की वैल्यू आ गई A प्लस B. क्लियर? अब नाउ वी विल यूज द ट्रायंगल OP2P3. ये ट्रायंगल हो OP2P3.
इस ट्रायंगल में लगाओ ट्रायंगल ला। इन ट्रायंगल OP2P3, सी केयरफुली, OP2P3, तो OP2 एंड P2P3 बोथ आर इन सेम ऑर्डर, तो रिजल्टेंट होगा OP3 टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। बाई ट्रायंगल ला OP2 प्लस P2P3 इज इक्वल टू OP3, OP2 plus P2P3 is equal to OP3. Put values. The value of OP2 vector is A plus B from this equation, plus C is equal to OP3, 1 and this is 2. Now the value of OP3 will become A vector plus B vector plus C vector. Now we will use the triangle OP3P4. इन ट्रायंगल OP3P4 बाई ट्रायंगल ला, लगाओ ट्रायंगल ला। इस ट्रायंगल में ट्राई करो अपने आप। गुड। OP3 प्लस P3P4 इज इक्वल टू OP4, OP3 प्लस P3P4 वेक्टर इज इक्वल टू OP4 वेक्टर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ OP3, A plus B plus C plus D is equal to resultant vector, यानी ये OP4 वेक्टर है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ वेक्टर्स A B C D and E, OP1 P2 P3 P4, if vector A, B, C, D and E, if vector A, B, C, D, E are represented by sides of a polygon taken in same order, sides of a polygon taken in same order, then the resultant is represented by, then A plus B plus C plus D plus E is equal to 0। वेक्टर को मैं A वेक्टर ऐसे भी लिख सकता हूं और बोल्ड करके भी लिख सकता हूं, तो दिस इज आल्सो द सिंबल फॉर A वेक्टर। तो जो स्टेटमेंट देख रहे हो इसमें मैंने बोल्ड कर रखा है A को, ABCDE जो है वो बोल्ड है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है, एरो मेंशन नहीं कर रखा उसमें। तो यहां मैं एरो लिख रहा हूं, तो इसे कंफ्यूज मत होना कि A वेक्टर इसके ऊपर एरो नहीं लगा रखा स्टेटमेंट में, तो वो अंडरस्टूड है, स्टेटमेंट लगा हुआ है। तो हमें प्रूव करना है कि इफ वेक्टर ABCDE आर रिप्रेजेंटेड बाई साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, then prove that A plus B plus C plus D plus E is equal to 0. Now using polygon law, P4 E के इक्वल है तो OP4 क्या होगा, that is equal to minus E. These are the opposite vectors. तो जो opposite vectors होते हैं उनकी डेफिनेशन ये होती है same magnitude but opposite direction. Apply polygon law. Apply polygon law in polygon OP1, P2, P3, P4। इस पॉलीगन में पॉलीगन लॉ लगाना है। तो क्या होता है पॉलीगन लॉ, OP1 प्लस P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P4 इज इक्वल टू OP4। मतलब कि ये सेम ऑर्डर और रिजल्टेंट विल बी इन अपोजिट ऑर्डर। तो रिजल्टेंट क्या होगा ABCD का, दैट इज OP4, एंड OP4 है मेरा माइनस E के इक्वल। नाउ पुट द वैल्यूज, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C प्लस D इज इक्वल टू माइनस E। तो क्या बन जाएगा यहाँ से,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0. This we have to prove. If two vectors, suppose this is the parallelogram O, P1, P2, P3. If two vectors both in magnitude as well as direction, if two vectors both in magnitude as well as direction are represented by adjacent sides of an parallelogram, ये कौन सी साइड है? एडजेसेंट साइड्स है. और यू कैन से इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट. दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ड्रॉ करने हैं. देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट एंड दिस इज आर वेक्टर. तो ये डायगोनल दो हो सकते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से. तो हमारा जो डायगोनल है रिजल्टेंट वेक्टर दैट शुड बी ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट O. तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर. तो पैरेललोग्राम लॉ स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट then the resultant is represented by diagonal drawn from same point. अब ये ओ बी वेक्टर है, तो अगर मैं एरो ऊपर लगाऊंगा तो ये भी क्या बन जाएगा? बी वेक्टर बन जाएगा. अब करना है प्रूफ ऑफ. तो यहां आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी. मुझे प्रूव करना है. Proof of parallelogram law of vector addition. In parallelogram O, P1, P2, P3, ये parallelogram है. OP3 is equal to P1, P2. OP3 is equal to P1, P2. OP3 parallel to P1, P2. Both are parallel. और both आर हैविंग सेम लेंथ, सेम मैग्नीट्यूड. अगर मैं एरो भी ऊपर लगा दूं तो दिस इज कॉल्ड बी वेक्टर. देन OP3 वेक्टर इज इक्वल टू P1 P2 वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर. दिस इज बी वेक्टर. अगर ये ए वेक्टर है, अगर मैं एरो इधर लगा दूं तो ये भी क्या बन जाएगा? ए वेक्टर. बट वी डोंट नीड दिस ए वेक्टर. OP3 P1 P2 दोनों इक्वल है, पैरेलल है, एरो भी मैंने डायरेक्शन भी सेम कर दी, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड बी वेक्टर. नाउ अप्लाई ट्रायंगल लॉ इन दिस ट्रायंगल. अप्लाई ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल OP1 P2. इसमें ट्रायंगल लॉ लगाओ तो क्या बनेगा? OP1 plus P1 P2 is equal to OP2. A plus B is equal to OP2 and this is called R vector. This is a proof of parallelogram law of vector addition. तो ये आ गया proof of parallelogram law of vector addition. तो state and proof आए तो write down the statement and then write the proof. इसी में एक क्वेश्चन हो रहा था, इसी की एप्लीकेशन है. प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. 50% क्वेश्चन तो यही करना है, तो इसलिए मैं रब नहीं करूंगा. प्रूव दैट, क्वेश्चन इज प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. वेक्टर एडिशन को कम्यूटेटिव प्रूव करना है. मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर. तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 तक सेम करना है. अब इसमें क्या है, ये जो सेकंड ट्रायंगल देख रहे हो इसमें भी मुझे क्या लगाना है? ट्रायंगल लगाना है. अब देखो OP1 एंड P3 P2 इक्वल एंड पैरेलल, सेम वी विल राइट.
OP1 is equal to P3P2, OP1 parallel to P3P2, OP1 vector is equal to P3P2 vector is equal to A vector. This is the A vector. Now apply triangle law in triangle OP3P2. Apply triangle law in OP3P2. क्या बनेगा यहाँ पे? OP3 वेक्टर प्लस P3P2 वेक्टर इज इक्वल टू OP2 वेक्टर. OP3 B वेक्टर प्लस A वेक्टर is equal to OP2. This is our equation number 2. Here R vector is equal to A plus B. Here R vector is equal to B plus A. From 1 and 2. From 1 and 2 we can write A plus B is equal to B plus A vector. Hence vector addition is commutative. Next video में we will find the magnitude of resultant vector. ये तो मैंने अब R वेक्टर है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर लिखा, A वेक्टर प्लस B प्लस C प्लस D भी लिखा. लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो है दैट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस. तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ कैन यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. मुझे इस वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करनी है. टिल देन आप घर पे बैठ के वीडियो देखें और अच्छे से समझें. स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू.